Welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to census 2027, and second issue is related to tobacco control laws in India, and third issue is how is the GST structure being simplified. Fourth issue is related to recent Supreme Court judgment related to giving assent to the bills by the governor. So let's discuss all the issues in detail. What will be the definition of urban and cities in upcoming India's most powerful census 2027? Census 2027 to retain urban area definition of previous count in 2011. 2011 सेंसस में अर्बन एरिया की जो डेफिनेशन थी 2027 सेंसस के अंदर उसको रिटेन करके रखा जाएगा. इट मींस सेम डेफिनेशन उसका यहाँ पर फॉलो किया जाएगा. लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1, फॉर जीएस पेपर 3. Why news? The upcoming census 2027 proposed to retain the same definition of an urban area as that used during 2011 census to ensure uniformity while comparing the urbanization trends in the country. 2011 में अर्बन एरिया की जो डेफिनेशन टेकिंग की गई थी 2027 सेंसस में भी उसी को रिटेन करके रखा जाएगा सो दैट कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स को कंपेयर करने में थोड़ा यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर किया जा सके. What is the definition of urban areas as per 2011 census? 2011 census के अकॉर्डिंग urban areas की definition क्या थी? An urban unit or town was defined as where a minimum population of 5,000 persons with a density of population of 400% per square kilometer and where 75% of the male working population is engaged in non-agriculture pursuits. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया की डेफिनेशन के अंदर मेनली तीन चीजें कंप्राइज की गई थी. जहां पर मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होगी, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 400 पर्सन पॉपुलेशन का डेंसिटी होगा एंड जहां पर मेल वर्किंग पॉपुलेशन का 75% पॉपुलेशन अगर नॉन एग्रीकल्चर वर्किंग में एंगेज है तो इस एरिया को यहाँ पर अर्बन एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया गया है. अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़ around 83.3 crore Indians or nearly 68.8% live in rural areas, while 37.7 crore or 31.2 crore reside in the urban areas. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन इंडिया की 121 करोड़ थी. 121 करोड़ में से अबाउट 83.3 करोड़ इट मींस अबाउट 68.8% पीपल रूरल एरियाज में लिविंग कर रहे थे. वहीं 37.7 करोड़ और 31.2% पीपल जो थे वो अर्बन एरियाज में रिसाइड कर रहे थे. ड्यूरिंग द 1951 census, the first after independence, the percentage of urban area in the country stood at 17.3%. इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद 1957 का 51 का जो सेंसस कंडक्ट किया गया था उस सेंसस के अकॉर्डिंग कंट्री के अंदर 17.3% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में लिविंग कर रही थी. इन 2011 देयर वर 6,40,867 villages in India, while there were 15,870 urban units, towns and cities. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर टोटल विलेजेस 6,40,867 थे. वहीं सिटीज टाउन्स एंड अर्बन एरियाज की अगर बात की जाए तो ओनली 15,817 ये नंबर्स में थे. About population census. Population census is a process of collecting, compiling, analyzing and disseminating demographic, economic and social data of all persons in the country. Population census किसी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना, कंपाइल करना, एनालाइज करना या डिसेमिनेट करने का एक प्रोसेस है जिसमें पीपल के इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा को भी कलेक्ट किया जाता है. It also provides the information related to trends in population characteristic. Population characteristic के trends से related information को भी ये collect करता है. The Indian census is the largest administrative exercise undertaken in the world. वर्ल्ड के अंदर अंडरटेकन की जाने वाली एक्सरसाइज में से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में से इंडियन सेंसस एक लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है. नोडल मिनिस्ट्री conducted by the Office of Registrar General and Census Commissioner under Ministry of Home Affairs. इंडिया के अंदर जो सेंसस कंडक्ट कराया जाता है वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, इसके द्वारा सेंसस कंडक्ट कराया जाता है.
Until 1951, the census organization was set up for each census on an ad hoc basis. 1951 तक एड हॉक बेसिस पर ईच सेंसस के लिए सेंसस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता था। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सेंसस, सेंसस के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं? कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट 1948, इंडिया के अंदर जो सेंसस कंडक्ट कराया जाता है वो सेंसस एक्ट 1948 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराया जाता है। सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अंदर इसको यूनियन सब्जेक्ट के अंदर टेकिंग किया गया है। इट इज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के सीरियल नंबर 69 के अंदर सेंसस को लिस्ट किया गया है। Confidentiality of information, the information collected during the population census is so confidential that it is not even accessible to the court of law. सेंसस के ड्यूरिंग पॉपुलेशन का जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि कोड ऑफ लॉ के बिफोर भी उसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। दिस कॉन्फिडेंशियलिटी इज गारंटेड बाय द सेंसस एक्ट 1948। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ये सेंसस एक्ट 1948 के द्वारा गारंटेड होती है। द लॉ स्पेसिफाइज पेनल्टीज फॉर बोथ सेंसस ऑफिशियल्स एंड पब्लिक फॉर नॉन कंप्लायंस और वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सेंसस एक्ट 1948 का अगर ऑफिशियल्स के द्वारा या फिर पब्लिक के द्वारा नॉन कंप्लायंस किया जाता है देन इसके अंडर कुछ पेनल्टीज स्पेसिफाई की गई हैं। हिस्ट्री ऑफ सेंसस, इंडिया में सेंसस का हिस्ट्री क्या रहा है? ऋग्वेदा अर्थशास्त्र आयन अकबरी के अंदर भी सेंसस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा मेंशन्ड दैट सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज मेंटेन्ड ड्यूरिंग 800 to 600 BC इन इंडिया। अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा के अंदर मेंशन किया गया है कि 800 600 BC इंडिया में कुछ पॉपुलेशन काउंट को मेंटेन किया जाता था। Arthashastra of Cordelia, written in the 3rd century BC, reveals about collecting of population statistics as a measure of state policy for taxation. कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि 3rd century BC में रिटन किया गया था, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन के बारे में ये रिवील करता है और इस स्टैटिस्टिक्स का यूज स्टेट के द्वारा टैक्सेशन पॉलिसी के लिए किया जाता था। आयन अकबरी also included comprehensive data pertaining to population, industry, wealth and many other characteristics. आयन अकबरी के अंदर भी कुछ comprehensive डाटा जिसके अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड डाटा पर्टेनिंग है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में सेंसस किस तरह से कंडक्ट कराया जाता था? द हिस्ट्री ऑफ द सेंसस बिगन विद 1800 व्हेन इंग्लैंड हैड बिगन इट्स सेंसस। सेंसस का हिस्ट्री 1800 से स्टार्ट होता है जब इंग्लैंड ने पहली बार सेंसस को कंडक्ट कराया। सेंसस वाज कंडक्टेड इन इलाहाबाद 1824 एंड इन बनारस 1827 कंडक्टेड बाय जेम्स प्रिंसेप। इंडिया के अंदर पहली बार सेंसस इलाहाबाद के अंदर 1824 में एंड उसके बाद बनारस में 1827-28 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कराया गया था। इलाहाबाद के अंदर 1824 और इसके जस्ट 3 ईयर बाद बनारस के अंदर कंडक्ट कराया जाता है सेंसस। In 1830, first complete census of India city was conducted by Henry Wallet in Deccan, now Dhaka. इंडिया के अंदर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो कराया जाता है वो हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका में कराया जाता है और 1830 में ये सेंसस कंडक्ट कराया गया था। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन अंडर ब्रिटिश रूल ऑन February 17, 1881 बाय W.C. प्लोडन। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग 1881 में W.C. प्लोडेन के द्वारा सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा कराया गया था। इट मींस ये जो सेंसस था ये सिंक्रोनस सेंसस था इंडिया के अंदर। सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन अनइंटरप्टेडली वंस एवरी 10 इयर्स। 1881 के बाद एवरी 10 इयर्स में सेंसस इंडिया के अंदर अंडरटेकन किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, सेंसस का सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया।
पीपल ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का एक बिगेस्ट सोर्स, लार्जेस्ट सिंगल सोर्स जो होता है वो इंडियन सेंसस ही होता है। डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर यूज सेंसस डाटा टू एनालाइज ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन एंड मेक प्रोजेक्शंस। पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ एंड ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स को सेंसस डाटा का नीड होता है और इसी के बेस पर ये प्रोजेक्शंस मेक करते हैं। नंबर ऑफ गुड गवर्नेंस, सेंसस डाटा इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट। सेंसस डाटा का यूज गुड गवर्नेंस पर्पज के लिए किया जाता है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए सेंसस डाटा का यूज किया जाता है। नंबर 3, डिमार्केशन, सेंसस डाटा इज ऑल्सो यूज फॉर डिमार्केशन ऑफ constituencies and collection, allocation of representation to local bodies, state level assemblies and parliament। सेंसस डाटा का यूज डिमार्केशन के लिए किया जाता है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो डिमार्केशन किया जाता है, लोकल बॉडी, स्टेट लेवल असेंबलीज एंड पार्लियामेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन के एलोकेशन के प्रोसेस में सेंसस डाटा का यूज किया जाता है। नंबर फॉर बेटर एक्सेस फॉर बिजनेस, द सेंसस डाटा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड प्लानिंग देयर बिजनेस। बिजनेस और इंडस्ट्रीज को अपने बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग या बिजनेस को स्ट्रेंथ करने के लिए सेंसस डाटा की नीड होती है। नंबर 5, गिविंग ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड ग्रांट्स टू द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स अवेलेबल फ्रॉम द सेंसस डाटा। फाइनेंस कमीशन स्टेट्स के लिए कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड करता है और इसके लिए सेंसस डाटा के थ्रू जो भी पॉपुलेशन फिगर्स अवेलेबल हैं उसका यूज किया जाता है। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, socio-economic and caste census was conducted in 2011 for the first time since 1931। इंडिया के अंदर 1931 के बाद पहली बार 2011 में सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था। इट सीक्स टू कैनवस एवरी इंडियन फैमिली इन रूरल एंड अर्बन इंडिया एंड आस्क अबाउट देयर इकोनॉमिक स्टेटस, स्पेसिफिक कास्ट नेम। 2011 में एवरी इंडियन फैमिली जो रूरल एंड अर्बन इंडिया के अंदर रह रही है उनसे पहली बार इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्पेसिफिक कास्ट नेम पूछा गया था। डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड एसईसीसी, सेंसस और एसईसीसी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के बीच में क्या डिफरेंस है? फील्ड ऑफ कवरेज, सेंसस प्रोवाइड अ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड एसईसीसी इज अ टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज ऑफ स्टेट सपोर्ट। सेंसस जो होता है वो इंडियन पॉपुलेशन का एक पोर्ट्रेट प्रोवाइड करता है, जबकि एसईसीसी जो होता है वो स्टेट सपोर्ट के द्वारा जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए टूल के तौर पर वर्क करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी के बेस पर क्या डिफरेंस है? सेंसस डाटा इज कॉन्फिडेंशियल, एसईसीसी डाटा इज ओपन फॉर यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ग्रांट और रेस्टेड बेनिफिट्स टू द पीपल। सेंसस डाटा जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, इट मींस इस डाटा को लीक नहीं किया सकता है, जबकि एसईसीसी डाटा जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के यूज के लिए ओपन होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एसईसीसी, बेटर मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज। एसईसीसी का क्या सिग्निफिकेंस होता है? नंबर, बेटर मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को बेटर तरीके से मैपिंग किया जा सकता है। SECC has the potential to mapping of inequalities at a broader level. SECC is useful to establish statistical justification for preserving caste-based affirmative action programs or welfare scheme. SECC जो होता है वो statistical justification for preserving caste-based affirmative action program। इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम और वेलफेयर स्कीम्स ऑनगोइंग होती हैं और उन स्कीम्स को बेटर तरीके से जस्टिफिकेशन के लिए एसईसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, लीगली इम्पेरेटिव, एसईसीसी इज आल्सो लीगली इम्पेरेटिव एज द कोर्ट्स रिक्वायर क्वांटिफिएबल डाटा टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के एग्जिस्टिंग लेवल को सपोर्ट करने के लिए क्वांटिफिएबल डाटा की नीड होती है और इसके लिए एसईसीसी का लीगली इम्पेरेटिव है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो फेवर कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कास्ट सेंसस को फेवर करता है। आर्टिकल 340 मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 मैंडेट करता है कि
इंडिया के अंदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा। कमीशन मेक रिकमेंडेशंस एज टू द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट। कमीशन का जो मेन रोल होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से एक्शंस टेकिंग किए जा सकते हैं उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस इसका करना होगा इसके द्वारा। What are tobacco control laws in India? In this article, we will discuss about COTPA Act 2003. COTPA means Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003. What is issue? In 2017, the annual economic cost of all tobacco products for the population aged 35 years and above in India were estimated at rupees 1.77 lakh crore, 1.04% of GDP. 2011 2017 के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स का जो इकोनॉमिक कॉस्ट रहा है एनुअली वो 1.77 लाख करोड़ रहा है। इट मीन्स अबाउट 1.04% ऑफ जीडीपी इसका कॉस्ट रहा है। इन एडिशन रुपीज 56,670 करोड़ वॉज एनुअल हेल्थ केयर कॉस्ट। 2017 में एनुअल हेल्थ केयर कॉस्ट जो रहा है वो 56,670 करोड़ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोबैको प्रोडक्ट कंज्यूम करने का जो कॉस्ट है वो कंट्री को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अबाउट 2 लाख करोड़ से ज़्यादा एनुअल जो एक्सपेंस है वो टोबैको प्रोडक्ट की वजह से जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो फेस करना पड़ता है। To reduce the burden of tobacco-related disease, India must urgently review and strengthen its tobacco control measures. टोबैको कंज्यूम करने की वजह से जो डिसीज होती हैं उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए इंडिया को अर्जेंटली टोबैको कंट्रोल मेजर्स को रिव्यू करना होगा, इन्हें स्ट्रेंथ करना होगा। स्टेटस ऑफ टोबैको यूज। टोबैको यूज कंटिन्यू टू पोज अ सीवियर पब्लिक हेल्थ थ्रेट इन इंडिया। टोबैको यूज इंडिया के अंदर सीवियर पब्लिक हेल्थ थ्रेट बना हुआ है। टोबैको कॉजिंग ओवर 3,500 डेथ डेली। It means 12,77,500 yearly and incurring an economic burden of rupees 2,340 billion annually, 1.4% of GDP in 2017. टोबैको की वजह से पर डे इंडिया के अंदर 3,500 डेथ होती है। इट मीन अबाउट 12,77,500 ईयरली डेथ होती है। इसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा इंडिया को फेस करना पड़ता है। अबाउट 1.4% ऑफ द जीडीपी यहाँ पर बर्डन इंडिया को फेस करना पड़ता है। रुपीज 551 बिलियन जीएसटी रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टोबैको एनुअली ऑन एवरेज इन द पास्ट 5 ईयर्स। पास्ट 5 ईयर्स में एवरेज जीएसटी के थ्रू टोबैको आइटम्स पर एनुअली 551 बिलियन का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इट मीन्स अबाउट 551 बिलियन जीएसटी के तौर पर टोबैको प्रोडक्ट्स यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। India remains the second largest consumer of tobacco globally after China, with 28.6% of adults and 8.5% of students between the age of 13 to 15 years using tobacco in some form. टोबैको कंज्यूम करने के रिस्पेक्ट में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बना हुआ है आफ्टर चाइना। इट मीन्स टॉपर चाइना है। इंडिया के अंदर 28.6% adults and 8.5% of स्टूडेंट टोबैको कंज्यूम करते हैं। रोल ऑफ जीएसटी टैक्सेशन ऑन टोबैको यूज। टोबैको यूज से रिलेटेड क्या टोबैको यूज को जीएसटी टैक्सेशन की वजह से रिड्यूस किया गया है। एज इंडिया मार्क्स 8 years in the introduction of the GST on July 1, 2017। जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए अभी लगभग 8 years हो चुके हैं। जीएसटी रिप्लेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज एंड सर्विस टैक्स, एस्टेब्लिशिंग अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट अंडर द वन नेशन वन टैक्स फ्रेमवर्क। जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्स की मल्टीप्लिसिटी को रिप्लेस किया है। इनडायरेक्ट टैक्स सच एज वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज एंड सर्विस टैक्स, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे और इन्हीं सबको रिप्लेस करके जीएसटी यहाँ पर लाया गया और जीएसटी के थ्रू यूनिफाइड नेशनल मार्केट एस्टेब्लिश की गई अंडर वन नेशन वन टैक्स फ्रेमवर्क। द रिफॉर्म हार्मोनाइज टैक्स रेट अक्रॉस स्टेट, इनहांस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फैसिलिटेटेड ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जीएसटी जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है इसके थ्रू अक्रॉस द स्टेट्स टैक्स रेट को हार्मोनाइज किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इनहांस किया गया है एंड
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए। इकोनॉमिकली जीएसटी हैज बीन अ कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर टू नेशनल रेवेन्यू में जीएसटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इन 2024-25 रीच्ड अ रिकॉर्ड रुपीज 22.08 lakh crore, reflecting a year-on-year growth of 9.4%. ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2024-25 का अबाउट 22.08 लाख करोड़ रहा है और ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ हो रहा है, अबाउट 9.4% का इसमें ग्रोथ देखा जा रहा है। However, this progress is accompanied by notable shortcomings, particularly in public health sector, especially tobacco taxation. Tobacco taxation जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही कम है, WHO के रिकमेंडेशन से भी काफी कम है। टोबैको इंडिया के लिए पब्लिक हेल्थ कंसर्न बना हुआ है। Taxation is globally recognized as one of the most effective instrument to reduce tobacco use. टोबैको यूज को रिड्यूस करने के लिए टैक्सेशन एक मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ग्लोबली यूज किया जाता है। यत सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी देयर हैव बीन नो सिग्निफिकेंट टैक्स इंक्रीज ऑन टोबैको प्रोडक्ट। जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है तब से टोबैको प्रोडक्ट पर सिग्निफिकेंट तरीके से टैक्स को इंक्रीज नहीं किया गया है। इन प्री जीएसटी पीरियड 2009 to 2017 ड्यू टू रेगुलर इंक्रीज इन एक्साइज एंड वैट कंट्रीब्यूटेड टू अ 70% डिक्लाइन इन टोबैको यूज प्रिवेलेंस। जीएसटी पीरियड से पहले जब एक्साइज एंड वैट इंक्रीज होता था, पहले रेगुलर इंक्रीज किया जाता था, उसकी वजह से टोबैको यूज में लगभग 17% का डिक्लाइन होता है। पोस्ट जीएसटी इंक्रीज रिस्क अंडरमाइनिंग पास्ट पब्लिक हेल्थ गेन्स ड्यू टू द इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। जीएसटी के बाद देखा गया है कि टोबैको कंज्यूमिंग का जो रेट है वो काफी हाई हुआ। Currently, the overall tax burden of tobacco product remain well below the WHO recommendation of 75% of the retail price. WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि टोबैको प्रोडक्ट के रिटेल प्राइस के 75% तक टोबैको टैक्सेशन इम्पोज किया जा सकता है, बट इंडिया के अंदर ये टैक्सेशन है वो बहुत ही कम है। 22% फॉर बीडीज पर ओनली 22% टैक्स इम्पोज किया जाता है। 54% फॉर सिगरेट्स पर अभी भी 54% है, जबकि 75% तक होना चाहिए। 65% फॉर स्मोकलेस टोबैको पर 64% तक का टैक्स लेवी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, कोटपा एक्ट 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडियाज प्राइमरी टोबैको कंट्रोल लॉ इज द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। इंडिया के अंदर टोबैको कंट्रोल से रिलेटेड लॉ जो है वो सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट यानी कोटपा एक्ट 2003 है। Additional regulations and acts such as Prohibition of Electronic Cigarettes Act 2019 and Juvenile Justice Act 2015 strengthen the efforts to control tobacco use and its impacts. टोबैको यूज को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर और भी कुछ एक्ट्स हैं सच एज प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019 एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये टोबैको यूज को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोटपा प्रोहिबिट टोबैको एडवर्टाइजमेंट, ये टोबैको एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है। रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स, टोबैको आइटम्स के ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट करता है। एम्स टू रिड्यूस कंजप्शन एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स, टोबैको एक्ट टोबैको कंजप्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, साथ ही हेल्थ हजार्ड से पब्लिक को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए उससे रिलेटेड प्रोविजन करता है। स्कोप ऑफ कोटपा, इट covers all form of tobacco product including बीडीज, cigarettes, खैनी, गुटखा, पान मसाला containing tobacco and more। कोटपा के अंदर सभी टोबैको प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग बीडी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला और जो भी आइटम जिनके अंदर टोबैको होता है सब इसके अंदर कवर होते हैं। की प्रोविजंस अंडर कोटपा, सेक्शन 4 प्रोहिबिट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस सच एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। कोटपा का सेक्शन 4 पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग को प्रोहिबिट करता है। पब्लिक प्लेस सच एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। सेक्शन 5 प्रोहिबिट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टोबैको एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप अक्रॉस ऑल मीडिया इंक्लूडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोटपा सेक्शन 5 के अंदर टोबैको के एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। टोबैको का अगर प्रमोशन किया जाता है, स्पॉन्सरशिप किया जाता है, उसको यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर या मीडिया के अंदर प्रोहिबिट किया गया है।
कोटपा सेक्शन 6A prohibit the sale of tobacco product to people under the age of 18. अंडर द एज ऑफ 18 पीपल को टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिट किए गए हैं, उसका सेल प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 6B रेस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट विद इन 10 यार्ड रेडियस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोटपा सेक्शन 6B के अंदर प्रोविजन किया गया है कि किसी भी टोबैको प्रोडक्ट को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 यार्ड रेडियस के विद इन उसको सेल नहीं किया जा सकता। पैकेजिंग एंड लेबलिंग कोटपा मैंडेट लार्ज रोटेटिंग पिक्टोरियल एंड टेक्स्ट हेल्थ वार्निंग ऑन टोबैको प्रोडक्ट पैकेजिंग कवरिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पैकेज। कोटपा के अंदर ये मैंडेट किया गया है कि हेल्थ वार्निंग टोबैको प्रोडक्ट पर लार्ज होना चाहिए, रोटेटिंग पिक्टोरियल फॉर्म में होना चाहिए और पैकेज का सिग्निफिकेंट पोर्शन वार्निंग से रिलेटेड होना चाहिए। इट ऑल्सो प्रोहिबिट मिसलीडिंग टर्म्स लाइक लाइट और लो तार। टोबैको पैकेज के ऊपर अगर कोई भी मिसलीडिंग टर्म सच एज लाइट और लो तार से रिलेटेड टर्म आता है उसको यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट जीएसटी रिफॉर्म्स इन इंडिया। हाउ इज द जीएसटी स्ट्रक्चर बीइंग सिंप्लीफाइड? Why Anush? The union government has suggested GST rate changes that would simplify the GST structure and would also go a long way in reducing the average effective tax rate. यूनियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट में चेंजेस करने के लिए कुछ सजेशंस गिवन किए हैं और इसके थ्रू जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंपलीफाई किया जा सकता है, साथ ही इफेक्टिव टैक्स रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। व्हाट डिड द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज ऑन रेट्स? यूनियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स से रिलेटेड क्या क्या प्रपोज गिवन किए हैं? इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच प्राइम मिनिस्टर अनाउंस अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स among which was a दीपावली गिफ्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स टू जीएसटी। इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नंबर ऑफ रिफॉर्म्स जिसमें दीपावली गिफ्ट के तौर पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स टू जीएसटी भी गिवन किया गया। द गवर्नमेंट प्रपोज्ड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स इन जीएसटी। गवर्नमेंट ने जीएसटी स्लैब्स के नंबर को रिड्यूस करने का यहाँ पर रिकमेंड किया एंड मूविंग मोस्ट आइटम्स टू द लोअर रेट। ज्यादातर आइटम्स को लोअर रेट में लाने के लिए यहाँ पर प्रपोज किया गया। द जीएसटी करंटली है जो एटलीस्ट 7 डिफरेंट रेट्स। करंट में जीएसटी के अंदर 7 डिफरेंट रेट्स हैं। नंबर 1 0.25%, नंबर 3 3%, नंबर 4 5%, 12%, 18%, 28% एंड अ कंपेंसेशन चार्ज लेविड ऑन द आइटम्स इन द 28% स्लैब। ये जीएसटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्लैब्स हैं, 7 स्लैब्स हैं। द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज टू रिड्यूस दिस टू 4। ये जितनी भी 7 स्लैब्स हैं यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो 4 स्लैब्स में इसको रिड्यूस कर दिया जाए। A rate of less than 1% for the items currently in 0.5% and 3%। ये यहाँ पर कुछ स्लैब्स अब न्यू प्रपोज की गई हैं। जो भी 0.5% स्लैब्स था और 3% का जो स्लैब था, इन स्लैब्स को अब लेस देन 1% स्लैब में रखा जाएगा। साथ ही एक 5%, 18% एंड 40% का स्लैब यहाँ पर ऐड किया जाएगा। 28% स्लैब यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। 0.25 और 3% का स्लैब यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। इट मीन्स न्यू स्लैब जो आने वाले हैं वो 1%, 5%, 18% एंड 40% का स्लैब होगा। एज पर द प्रोपोजल 99% ऑफ द आइटम्स करंटली इन 12% स्लैब वुड मूव टू 5%। 12% स्लैब में आने वाले 99% आइटम्स को अब 5% स्लैब में रखा जाएगा। 90% ऑफ द आइटम्स इन द 28% स्लैब वुड मूव टू 18%। 28% में आने वाले 90% आइटम्स को अब 18% स्लैब में रखा जाएगा। द रिमेनिंग आइटम्स इन द 28% स्लैब मेनली सिन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज टोबैको, सिगरेट्स एंड ऑनलाइन गेमिंग वुड मूव टू अ हायर टैक्स रेट ऑफ 40%। कुछ आइटम्स को 40% स्लैब में अब रखा जाएगा जिसमें सिन गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। सिन गुड्स के अंदर टोबैको, सिगरेट्स एंड सर्विसेज में ऑनलाइन गेमिंग, अब इनके ऊपर अबाउट 40% तक का टैक्स इम्पोज किया जाएगा। However, the thrust of the change is to ensure that a vast majority of items would be in just the two slabs of 5% to 18%। हाईएस्ट मेजोरिटी ऑफ आइटम्स को जो रखा जाएगा वो 5% एंड 18% स्लैब्स में रखने के लिए इंश्योर किया गया है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द कॉमन कंज्यूमर? कॉमन कंज्यूमर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ड्यू टू दिस जीएसटी रिफॉर्म द एवरेज टैक्स रेट अंडर जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 9.5% बाय 26 to 27
from a national rate of 14.4% in May 2017 and 11.6% as of September 2019। जीएसटी के इस रिफॉर्म की वजह से एवरेज टैक्स रेट जो होगा इंडिया के अंदर जीएसटी के थ्रू वो 9.5% तक रिड्यूस हो सकता है। 2011 में एवरेज टैक्स 14.4% हुआ करता था, 2019 में 11.6% हुआ करता था, बट अब ये 9.5% तक रिड्यूस हो सकता है। टैक्स ऑन कॉमन यूज आइटम्स लाइक सोप, टूथपेस्ट एंड अदर टॉयलेटरीज currently taxed at 18% will be taxed at 5%। कॉमन आइटम सच एज सोप, टूथपेस्ट एंड अदर टॉयलेटरीज इनके ऊपर जो करंट में टैक्स इम्पोज किया जाता था वो 18%, अभी भी 18% इम्पोज किया जा रहा है, बट इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद इसको 5% स्लैब में रख दिया जाएगा। कॉमन फूड आइटम्स सच एज शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस अलॉन्ग विद लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड appraisal less than ₹1000 will remain in the 5% basket। कुछ कॉमन फूड आइटम्स सच एज शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस जिनका कॉस्ट ₹1000 से लेस है उनको 5% ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। नॉन लग्जरी कार्स, एसीज एंड फ्रिजेस currently taxed at 28% plus a compensation set are expected to move to 18%। नॉन लग्जरी कार, एसी एंड फ्रिज जिनको करंट में 28% के थ्रू यहाँ पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, यहाँ पर 18% स्लैब के अंदर इनको रखा जाएगा। Goods and service tax. GST is an indirect tax system introduced in India on July 1, 2017, which subsume multiple indirect tax levied by the state and central government such as VAT, excise duty and service tax। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करना है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स लेवी किए जाते थे, इन सभी को जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम किया गया है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर लेवी किया जाता है, ओनली सप्लाई पर लेवी किया जाता है। इट इज डिजाइन टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट इन इंडिया बाय एलिमिनेटिंग बैरियर्स टू इंटर स्टेट ट्रेड। इंडिया के अंदर एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया और इसके अंदर इंटर स्टेट ट्रेड्स में जो भी प्रीवियसली बैरियर थे उसको एलिमिनेट कर दिया गया। मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के मेन फीचर्स क्या क्या हैं? एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इन ओल्ड concept tax applicable on the manufacture of goods or on sale of the goods or on provision of the services। जीएसटी ओनली गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर एप्लीकेबल होता है, जबकि ओल्ड टैक्स कंसेप्ट के अंडर गुड्स के मैन्युफैक्चर पर, सेल पर एंड सर्विस पर भी टैक्स अप्लाई किया जाता था। इट मीन्स यहाँ पर गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल पर और सर्विसेज के सेल पर यहाँ टैक्स को अब हटा दिया गया, ओनली सप्लाई साइड पर ही जीएसटी इम्पोज किया जाता है। Destination based taxation, GST is based on the principle of destination based consumption taxation as against the old principle of origin based taxation। ओल्ड प्रिंसिपल में ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन इम्पोज किया जाता था, लेकिन जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन है। ड्यूअल जीएसटी, इट इज अ ड्यूअल जीएसटी विद द स्टेट्स एंड सेंटर simultaneously levying tax on the common base। GST to be levied by the center is called central GST CGST and that to be levied by the state is called SGST। Import of goods and services would be treated as interstate supplies and will be known as integrated goods and services IGST in addition to the applicable custom duties। गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी इंपोर्ट किया जाता है कंट्री के अंदर उन्हें इंटर स्टेट सप्लाईज एंड इन्हें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST के तौर पर ट्रीट किया जाता है और इनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज एप्लीकेबल होती है। जीएसटी रेट्स टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड, CGST, SGST एंड IGST आर लेविड एट रेट्स टू बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द स्टेट्स एंड सेंटर। स्टेट एंड सेंटर के एग्रीमेंट के बाद ही SGST, CGST एंड IGST लेवी किए जाते हैं। द रेट्स आर फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेस पर रेट फिक्स किए जाते हैं। मल्टीपल रेट्स, इनिशियली जीएसटी वाज लेविड एट 4 रेट्स, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये इनिशियल रेट हुआ करते थे जीएसटी का। द शेड्यूल और लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट वुड फॉल अंडर दीज मल्टीपल स्लैब्स आर प्रिपेयर्ड बाय द जीएसटी काउंसिल।
जीएसटी काउंसिल के द्वारा मल्टीपल स्लैब्स प्रिपेयर की जाती हैं और मल्टीपल आइटम्स इनके अंदर लिस्टिंग किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव बेसिस ऑफ जीएसटी, जीएसटी का लेजिस्लेटिव बेसिस क्या है? इन इंडिया जीएसटी बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल। इंडिया के अंदर पहली बार 2014 में जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का 122 अमेंडमेंट इसके अंडर किया गया था। जीएसटी गॉट एन अप्रूवल इन 2016 and was renumbered in the statute by Rajya Sabha as the Constitution 101st Amendment of 2016. Its provisions central GST cover excise duty, service tax, state GST, VAT, luxury tax, integrated GST, interstate trade. IGST is not a tax but a system to coordinate state and union taxes. IGST को टैक्स नहीं है, ये स्टेट एंड यूनियन टैक्स को कोऑर्डिनेट करने का एक सिस्टम है। आर्टिकल 246 स्टेट है पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। आर्टिकल 246 ए के अकॉर्डिंग स्टेट के अंदर पावर है कि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड पावर रखती है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 217 ए टू एडमिनिस्ट्रेट एंड गवर्न जीएसटी काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट। जीएसटी काउंसिल जो फॉर्म की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म की जाती है एंड आर्टिकल 279 ए के अंडर ही जीएसटी को एडमिनिस्टर किया जाता है, गवर्न किया जाता है। चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं। मेंबर्स मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ये इसके मेंबर होते हैं। द काउंसिल इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3 यानी 33% वोटिंग पावर एंड द स्टेट हैव 2/3 66% वोटिंग पावर। जीएसटी काउंसिल इस तरह से यहाँ पर डिवाइड की गई है कि यहाँ पर सेंटर को 33% का वोटिंग पावर है एंड स्टेट को 66% का वोटिंग पावर गिवन किया गया है। द डिसीजंस आर टेकन बाय 3/4 मेजोरिटी। 3/4 मेजोरिटी के हिसाब से इट मींस अबाउट 74.5% मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन यहाँ पर टेकिंग किए जाते हैं। की अचीवमेंट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के की अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं? राइजिंग नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स, जीएसटी टैक्स पेयर्स का नंबर राइज हुआ है, ग्रो फ्रॉम 1.05 करोड़ टू 1.46 करोड़। पहले जीएसटी टैक्स पेयर जो थे वो 1.05 करोड़ हुआ करते थे, वहीं अब 1.46 करोड़ लोग अब जीएसटी पे कर रहे हैं। एलिमिनेटेड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का जो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था उसको एलिमिनेट किया गया है। जीएसटी रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन ऑफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, स्मॉल टैक्स पेयर को जो कंप्लायंस बर्डन था उनके ऊपर जीएसटी के थ्रू इसको रिड्यूस किया गया है। इंक्रीज इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक वे, इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। की चैलेंजेस कंसर्न एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन, जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या की चैलेंजेस हैं एंड उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? चैलेंजेस कंसर्न मल्टीपल टैक्स स्लैब एंड वेरियस प्रोडक्ट्स आर स्टिल आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर मल्टीपल टैक्स स्लैब हैं और वेरियस प्रोडक्ट अभी भी जीएसटी के परव्यू से आउट हैं, सच एज लिक्वर। टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट्स हैज रिड्यूस, स्टेट की जो टैक्सेशन पावर थी उसको रिड्यूस किया गया है। शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इज नॉट कंपेंसेटेड टाइमली, स्टेट्स को जो रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ है उसको कंपेंसेट टाइमली नहीं किया जा रहा है। पोटेंशियल सॉल्यूशन नीड टू रैशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब, टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की जरूरत है, साथ ही टैक्स स्लैब्स के नंबर को रिड्यूस करने की जरूरत है। रेवेन्यू लॉस ऑफ स्टेट शुड बी कंपेंसेटेड ऑन टाइम, टाइम पर रेवेन्यू स्टेट को जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको टाइमली कंपेंसेट करना होगा। अर्ली ऑपरेशनलाइजिंग ऑल द बेंचेस ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बिफोर जितनी भी कंप्लेंट है उसको बेटर तरीके से सॉल्व करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। What is recent Supreme Court judgment related to governor's power to give assent to bills? Recently, Chief Justice of India said Supreme Court is custodian of the Constitution. Should Supreme Court sit powerless at governors block bills? Recently, CJI Chief Justice of India ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन है। क्या सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर्स जिस तरह से बिल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस तरीके से सिट हो जाना चाहिए? ये CJI ने क्वेश्चनिंग किया है। Solicitor General says the court has encroached into the terrain of the law making. He adds delay in the bill should be handled politically, not via court orders. Solicitor General ने कहा है कि कोर्ट लॉ मेकिंग का जो टेरेन है जुडिशरी का उसमें एनक्रोच कर रहा है और
सॉलिसिटर जनरल ने साथ में ये भी कहा कि जो बिल गवर्नर्स के द्वारा डिले किए जा रहे हैं उन्हें पॉलिटिकली हैंडल किया जाना चाहिए, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हैंडल नहीं किया जाना चाहिए। Before months, it also fixed time limits of 1 to 3 months for governors to take action on future bills. कुछ मंथ बिफोर सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर बिल्स पर एक्शन लेने के लिए 1 to 3 मंथ्स का यहाँ पर टाइम फिक्स किया था। इट मीन्स कोई भी गवर्नर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए बिल को लॉन्ग टाइम के लिए अगर विदहोल्ड करके रखता है तो ये इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है, और इसके लिए 1 to 3 मंथ्स का टाइम फिक्स किया है कि जो भी डिसीजन लेना है गवर्नर वो टेकिंग कर सकता है इतने टाइम पीरियड के अंदर। द कोर्ट सेड दैट अ गवर्नर मस्ट बी अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर टू द स्टेट, नॉट अ हिंड्रेंस। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को स्टेट का फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर के तौर पर वर्क करना चाहिए, एक हिंड्रेंस के तौर पर वर्क नहीं करना चाहिए। गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर बिल को प्रिजर्व करके रख सकता है, ये उसकी पावर है। गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन of the president is limited and confined to specific circumstances detailed in the proviso to article 213 of the constitution। प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गवर्नर को बिल को रिजर्व करने की पावर मिली हुई है, बट इसमें स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल 213 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। थ्रू मशीनेशन ऑफ द गवर्नर सेंटर टेक डिसीजन ऑन इश्यूज कमिंग विद इन द एम्बिट ऑफ द स्टेट डोमेन। गवर्नर पोस्ट का करंट में मशीनाइजेशन किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू उन इश्यूज पर भी डिसीजन टेकिंग कर रही है जो स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन में आते हैं। इट मीन्स यहाँ पर गवर्नर पोस्ट का मिसयूज किया जा रहा है। दिस इज अ हाईली आर्बिट्रेरी एक्शन वायलेटिंग आर्टिकल 14, आर्टिकल 200, 201। आर्टिकल 14, 200 और 201 का यह वायलेशन है। आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वलिटी का राइट मिला हुआ है। आर्टिकल 200 के अंदर प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग एसेंट टू द बिल्स, बिल्स को ग्रांट एसेंट ग्रांटिंग करने का प्रोविजन गिवन है। आर्टिकल 201 प्रोसीजर रिगार्डिंग बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करने से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन गिवन किया गया है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन से? आर्टिकल 200 of the constitution lay down that when a bill passed by state legislature is presented to the governor for their assent, they have four alternatives। कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है और उसको गवर्नर की एसेंट के लिए अगर प्रेजेंट किया जाता है तो गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। नंबर मे गिव एसेंट टू द बिल, वो बिल को एसेंट गिवन कर सकता है। मे विदहोल्ड एसेंट टू द बिल, दैट इज रिजेक्ट द बिल इन विच केस द बिल फेल्स टू बिकम लॉ, वो बिल को विदहोल्ड करके भी रख सकता है। इट मीन्स यहाँ पर वो अब लॉ नहीं बन पाएगा। नंबर 3 मे रिटर्न द बिल, इस केस में वो बिल को रिटर्न करके रख सकता है। इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता है। और मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो बिल को रिजर्व करके भी रख सकते हैं। सारे प्रोविजन आर्टिकल 200 के अंदर किए गए हैं। गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेस पर एक्ट करना चाहिए। द गवर्नर मस्ट रिजर्व ओनली सर्टेन बिल्स लाइक दोज व्हिच रिड्यूस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर को उन्हीं बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए जो कि हाई कोर्ट की पावर या फिर यूनियन से रिलेटेड अगर कोई मैटर है। दे मे ऑल्सो रिजर्व बिल ऑन कॉन्करेंट लिस्ट दैट आर रिपुग्नेंट टू अ यूनियन लॉ बेस्ड ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस। गवर्नर उन बिल को भी रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए जो कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड मैटर पर है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया है जिसके अंडर गवर्नर को डिसीजन टेकिंग करने के लिए मैंडेट किया गया है। बट सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको 1 to 3 मंथ फिक्स कर दिया है। व्हेन अबाउट प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट अगर कंसिडरेशन प्रेसिडेंट के बिफोर अगर कोई बिल पहुंचता है तो प्रेसिडेंट उस पर किस टाइप के एक्शंस टेकिंग कर सकता है। कोर्ट रूल्ड दैट अ बिल कैन नॉट बी रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन वंस इट हैज बीन रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेचर रिकंसिडर्ड एंड रिसबमिटेड फॉर द एसेंट। कोर्ट ने यह भी रूल गिवन किया कि एक बार अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन टेकिंग कर ली गई है और उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास अगर रिटर्न कर दिया गया है, अगेन उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता। द ओनली एक्सेप्शन इज इफ द बिल इन इट्स सेकंड इटरेशन इज मैटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्जन। सेकंड टाइम प्रेसिडेंट के बिफोर सिर्फ तभी ट्रांसफर किया जा सकता है जब न्यू जो बिल है उसका वो अगर ओरिजिनल वर्जन से
फुल्ली डिफरेंट है, उस केस में सेकेंड टाइम भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करके रखा जा सकता है। Judgment also clarified that such reservation cannot be based on personal dissatisfaction or political expediency and is only permissible when bill is a grave threat to democratic principle. कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि जो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल्स को रिजर्व करके रखा जाता है वो पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन के बेस पर या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के बेस पर नहीं होना चाहिए। ये तभी परमिसिबल है जब कोई भी अगर मैटर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की थ्रेट से रिलेटेड है, उस टाइम पर बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखा जा सकता है। Judges have set a 3 months deadline for the president to decide whether to assent to bill referred by the governor. जजेज को यहाँ पर 3 मंथ की डेडलाइन यहाँ पर गिवन की गई है और इसके अंडर प्रेसिडेंट को भी और जजेज गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को यहाँ पर बिल के रिगार्डिंग डिसीजन देना होगा। Any delay beyond this period must be accompanied by justifiable reason and communicate to the concerned state, the ruling state. सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के अंदर ये स्टेट किया गया है कि अगर इस पीरियड से ज्यादा टाइम टेकिंग किया जाता है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट को यहाँ पर जस्टिफिएबल रीजन देना होगा। हाउ गवर्नर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में गवर्नर का क्या रोल है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गवर्नर अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट फॉर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के अंदर गवर्नर जो होता है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड होता है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड होता है। गवर्नर एक्ट एज एन अपॉइंटी ऑफ द सेंटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन क्रिटिकल टाइम्स। गवर्नर जो होता है वो सेंटर का एक अपॉइंटी होता है जो कि क्रिटिकल टाइम में नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Federalism is a basic feature of our constitution and governor's office should not undermine the power of the elected government at the state. फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है और गवर्नर की जो ऑफिस है, गवर्नर ऑफिस को स्टेट गवर्नमेंट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है स्टेट की उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। Is judicial review permissible? The judges emphasize that any exercise of gubernatorial discretion must be under judicial review to prevent any disregard for the will of the people. जजेस ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया है कि अगर कोई भी गवर्नर अपना डिस्क्रिप्शन शो करता है किसी बिल के रिगार्डिंग, वो जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। इन्वोकिंग इट्स इनहेरेंट पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट डीम्ड द 10th पेंडिंग बिल्स टू हैव रिसीव्ड असेंट। कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर का यूज करते हुए कहा है कि 10 पेंडिंग बिल्स तमिलनाडु से रिलेटेड ये बिल्स हैं उनको एसेंट उसने गिवन किया है अपने लेवल पर, बिकॉज वहां पर गवर्नर ने 10 बिल्स को ईयर्स तक पेंडिंग करके रखा हुआ था और इन बिल्स को कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एसेंट गिवन कर दिया गया। व्हाट वर द रिकमेंडेशंस अबाउट दिस इशू? सरकारिया कमीशन हैज सबमिटेड दैट बिल्स शुड बी रिजर्व्ड इन रेयर केसेस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। 1987 में सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया है कि बिल्स को रेयर केसेस में ही प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व करके रखा जा सकता है, स्पेशली अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी से रिलेटेड मैटर है। गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। गवर्नर को मिनिस्टर्स के एडवाइस के बेस पर ही फंक्शन करना चाहिए एज पर आर्टिकल 200। इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड डिस्पोज ऑफ सच बिल्स विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. If president withholding assent, the region should be communicated to the state government where possible. The Panchi Commission 2010 had recommended that the governor should take a decision with respect to a bill represented for their assent within a period of 6 months. पंची कमीशन ने भी रिकमेंड किया कि गवर्नर को भी बिल्स के रिस्पेक्ट में 6 मंथ के पीरियड के अंदर एसेंट गिवन कर देना चाहिए। These recommendations have not been implemented till date. अभी तक इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो थैंक्स